Hello guys, how are you all? I hope everybody is doing very well. I am Pavitra Bagh here to teach you biology. My dear students, we have already discussed about asexual reproductions in organism. Today we will discuss about the sexual reproduction in organism. Let's explore the sexual reproduction in organism. Sexual reproduction in organism पढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ टर्म्स बताऊंगा. हालांकि वो टर्म्स तुम लोग जानते होगे, फिर भी मैं और एक बार उसको पढ़ाऊंगा. उसके बाद मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगा. ओके, तो उससे पहले देखो, मैं यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा एक डायग्राम बनाया हूँ तुम लोगों के लिए. यू कैन सी हियर. ओके, देखो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे है फर्टिलाइज सेल. फर्टिलाइज सेल मतलब क्या है बच्चों? फर्टिलाइज सेल का मतलब क्या है? फर्टिलाइज सेल का मतलब ये होता है बच्चों, जब मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होकर एक सेल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जाइगोट. हम क्या बोलते हैं इसको? जाइगोट. इस जाइगोट को ही हम बोलते हैं फर्टिलाइज सेल. ये जाइगोट सेल हमारा होता है सिंगल सेल. ओके, इसमें एक ही सेल है. ओके, देखो दो हाप्लॉइड सेल को मिलकर हमारा जाइगोट बनता है, दैट इज डिप्लॉइड वन, बट ये एक ही सेल है. ओके, ये हमारा एक ही सेल है. दिस डिप्लॉइड सेल्स, दिस सिंगल डिप्लॉइड सेल गिव्स राइज टू अ कंप्लीट ऑफस्प्रिंग, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. यही सिंगल डिप्लॉइड सेल हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट ऑफस्प्रिंग. ओके, क्लियर? देखो कितना मिरेकल जैसा बात है, कितना अमेजिंग बात है ये. हम जो बने हैं, हम जो ऑर्गेनिज्म बने हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन फॉर्म ओनली फ्रॉम देयर और सिंगल सेल जाइगोट. सिंगल सेल जाइगोट से ही तुम्हारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है. वन मोर थिंग, देखो मैंने तुम लोग को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था. उसमें क्या बताया था? हम पढ़े थे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन में क्या होता था? एमोइबा एक था, उसमें बाइनरी फिजन होने के बाद एक से दो ऑर्गेनिज्म बनते थे. बट यहाँ पे रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था? एक मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, दो फ्यूज होकर एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ? एक से दो बन रहा था, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? दो से एक बन रहा है. ओके, सो दिस इज व्हाट reproduction in organisms and sexual reproduction. Okay, now I have made a video for you. Let's see, let's watch the video and enjoy. The journey of life starts with a fascinating race. Starting with millions of sperm, only one, the fastest and the strongest, will reach the finish line. Some fall out of the race, getting lost in the rush through the narrow fallopian tubes, while some are stopped by natural obstacles which protect the woman's body from intruders. Those who make it closer to the end compete fiercely with each other. Together, they attack the egg cell. Their only goal is to be the first one to enter the egg. Only one will make it through, but the others simplify this mission by slowly dissolving the membrane of the egg. Finally, we have a winner. The winning sperm enters the egg and conception occurs. Half the man's and half the woman's chromosomes combine. This creates a unique DNA code which is needed to create new life. These combined chromosomes form the first cell of the new baby. This is now called the zygote. The zygote starts to divide into a cluster of cells and begins to travel to the friendly and safe habitat of the uterus. When the zygote is divided into a bubble of cells, a blastocyst is formed with an inner layer of cells making up the embryo, and an outer layer which will protect and nourish the embryo. The blastocyst then finds a comfortable place to stay in the uterus for the next 40 weeks to develop and transform into a human being. Okay, I hope you all enjoy the video. Okay, now look here, we have sexual reproduction in human. Sexual reproduction in human. In any sexual reproduction, we need two sex gamete. One is your male gamete, that is known as sperm, or we
known as, we call the sperm and anthrazoids also. We call sperm anthrazoids also. sperm को हम anthrazoids भी बोलते हैं बच्चों. Okay, another gamete is, that is female gamete, that is egg. Okay, so we need two gametes, that is male sex gamete, another one is your female sex gamete. female sex gamete को हम sperm बोलते हैं, मेल गैमेट्स को हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट्स को हम एग बोलते हैं. इन दोनों के बीच फ्यूजन होने के बाद हमें मिल जाता है हमारा जाइगोट. जाइगोट तुम्हारा फिर माइटोसिस के हिसाब से डिवाइड होके हमको देता है एम्ब्रियो. फिर उसका सेल डिफरेंशिएशन होता है, देन हमको मिल जाता है हमारा नया क्यूट सा बेबी, दैट इज आवर न्यू ह्यूमन ऑफस्प्रिंग. दिस इज व्हाट occurs in our human reproduction, that is sexual reproduction in human. Okay, now come to the sexual reproduction in plants. As like in the human, plant also require two sex gamete. One is your male sex gamete, another one is your female sex gamete. Okay, so ये हमारा प्लांट है. प्लांट में दो सेक्स गैमेट होगा, एक होगा मेल सेक्स गैमेट, दैट इज नोन एज, प्लांट में बोलते हैं उसको स्टैमेन बोला जाता है. सॉरी, प्लांट में हम उसको जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं स्टैमेन, एंड प्लांट में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल. स्टैमेन के अंदर होता है तुम्हारा मेल गैमेट्स एंड पिस्टिल के अंदर होता है तुम्हारा फीमेल गैमेट्स. नाउ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में पॉलिनेशन होता है. पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन से तुम्हारा सीड बनता है, पहले एम्ब्रियो फिर सीड से तुम्हारा फिर से नया प्लांट बनता है. दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ओके, सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ new living organism by combining genetic information from two individual of different types, or you can say sexes. Okay, so दो डिफरेंट सेक्स चाहिए हमको नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए. सो रिप्रोडक्शन क्या बोल रहा है, हमको प्रोडक्शन करना है नया लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस. ओके, हमको एक मेल चाहिए होगा और एक फीमेल चाहिए होगा, और उनके गैमेट्स चाहिए होगा. क्या करने के लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे हम? एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे. नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा? बाय द कंबाइनिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. तो इसका क्या मतलब हो गया? जो मेल सेक्स गैमेट स्पर्म में जो जेनेटिक मटेरियल है और जो फीमेल सेक्स गैमेट में जो जेनेटिक कंपोनेंट है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइनिंग होगा, मिक्सचर होगा, देन हमको मिलेगा जाइगोट. एंड जाइगोट से डेवलप्ड होगा एम्ब्रियो से डेवलप्ड होगा नया बेबी और न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म्स. ओके, सो लुक here we have the female sex gamete, that is egg or ovum. ये हमारा है ovum. Okay, now we have मेल सेक्स गैमेट, दैट इज स्पर्म. इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है. सो हमको दो सेक्स चाहिए, एक मेल सेक्स और एक फीमेल सेक्स. ऑपोजिट सेक्स होना जरूरी है. ओके, ना कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? पहला थिंग जेनेटिक एक्सचेंज. जेनेटिक एक्सचेंज किस किस के चीज़ में होगा? एक तो स्पर्म के अंदर जो जीन होगा एंड ओवम के अंदर जो जीन होगा, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा. ओके, दिस इज व्हाट genetic exchange occurs in sexual reproduction. Another one, it involves germ cell. germ cell को इन्वॉल्व करता है. germ cell क्या क्या हो गया? हमारा sperm and eggs. देखो बच्चों, germ cell से बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज में आ जाते हैं. germ cell का मतलब होता क्या है? germ cell का मतलब यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं sperm and eggs को यूज कर रहे हैं, बट germ cell का मतलब और भी होता है माइक्रोब्स. तुम लोग देखे होगे हमारा लाइफ बॉय जो क्लीन 100% जर्म सेल, ऐसा नहीं है. डेटल क्लीन द जर्म सेल 100% जर्म सेल. दिस इज नॉट about that type of germ cell. This is only about the sperm and eggs. So don't confuse with the germ cell, that is sperm and eggs, and don't compare it with your microbes. Okay, चलो आगे चलते हैं. So sexual reproduction is an elaborate, slow and complex as compared to the asexual reproduction. क्या बोल रहा है ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत ही लेंथी एंड इलाबोरेट प्रोसेस है और ये बहुत धीरे धीरे स्लो होता है एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. किसके कंपैरिजन के हिसाब से? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से. देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत रैपिडली होता है एंड बहुत सिंपली हो जाता है। फॉर एग्जांपल बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में होता क्या है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी सिंपल, वेरी फास्ट एंड वेरी short period of reproduction, but sexual reproduction is elaborate and slow and complex as compared to the asexual reproduction. Now here is a term called heterogametes. Heterogametes का मतलब क्या है, first you have to know hetero, hetero मतलब different and gametes का मतलब सेक्स गैमेट, जर्म सेल यू कैन से। सो दो गैमेट, दो टाइप्स का गैमेट है यहाँ पे हमारा, एक स्पर्म एंड एक है तुम्हारा एग। तो ये दोनों अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमेट्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई स्पीसीज, मान लो ह्यूमन स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज दोनों गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, एक है तुम्हारा स्पर्म को, एक है तुम्हारा एग को। तो ये हो गया क्या, ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूसेस हेट्रोगैमेट, हेट्रोगैमेट प्रोड्यूस करते हैं। अगर मान लो सपोज ह्यूमन ओनली स्पर्म प्रोड्यूस करता है तो क्या बोलते हैं हम उसे, उसको हम बोलते हैं होमोगैमेट्स बोलते हैं। बट हेट्रोगैमेट्स का मतलब आई होप तुम लोग समझ में आ गया। ओके चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या दिखा है देखो, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और एमंग देमसेल्फ। क्या बोला यहाँ पे हमारा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, एक मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है, सही बात है, जिसके वजह से हमको एक ऑफस्प्रिंग मिलता है, सही बात है ये भी। बट दैट आर नॉट आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल नहीं है बोल रहा है, टू द पेरेंट्स और एमंग देमसेल्फ, पेरेंट के साथ भी आइडेंटिकल नहीं है और जितना बच्चे और भी पैदा होंगे उनके साथ भी आइडेंटिकल नहीं है बोल रहा है। क्या हुआ इसका मतलब, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, जब बाइनरी फ्यूजन ऑफ एमोइबा होता था, एक एमोइबा से दो एमोइबा बन जाते थे और ये दोनों, ये ऑफस्प्रिंग है, ये हमारा पेरेंट्स है, ये ऑफस्प्रिंग जो है आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स होते थे। बट हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा दैट नेवर बीन सिमिलर और आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और एमंग देमसेल्फ। तो पेरेंट के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनता है, ऑफस्प्रिंग पेरेंट के साथ कभी भी आइडेंटिकल नहीं होगा, सिमिलर हो सकता है बट आइडेंटिकल नहीं होगा। ओके चलो, सो ये जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो गया, समझ में आ गया। नाउ एवरी इंडिविजुअल, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव 3 फेज ऑफ लाइफ साइकिल। उनके लाइफ साइकिल में 3 फेज होता है। One is your juvenile or vegetative phase, second one is your reproductive phase, third one is your decline or death or senescence phase. Now discuss one by one of the phase of life cycle. Okay, now come to the first one, that is juvenile. Juvenile word जो है हमारा एनिमल में यूज होता है, वेजिटेटिव फेज किस में होता है, प्लांट्स में यूज होता है। इतना तो तुम लोगों को पता है, वेजिटेटिव वर्ड्स आया मतलब प्लांट्स के बारे में बोला जा रहा है। नाउ क्या है ये जुवेनाइल, ओके क्या है ये जुवेनाइल फेज। ओके देखो पढ़ते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। तो जुवेनाइल फेज इज नथिंग बट द प्री रिप्रोडक्टिव फेज। इसका क्या मतलब हो गया, रिप्रोडक्शन का पहले का पीरियड को बोलते हैं जुवेनाइल फेज। मान लो ह्यूमन बींग्स कब रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद ही ये लोग रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। सो प्यूबर्टी के पहले का प्री प्यूबर्टी स्टेज ऑफ द लाइफ इज नोन एज जुवेनाइल। तो ये क्या हो गया, प्यूबर्टी से पहले का, पहले, ओके एक मिनट रुको, प्यूबर्टी से पहले का लाइफ को हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज बोलेंगे। सेकेंड थिंग क्या लिखा है देख सकते हैं यहाँ पे, पीरियड बिटवीन बर्थ एंड बिफोर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। क्या बोल रहा है, जन्म होने से लेकर रिप्रोडक्शन का पहला फॉर्म तक हमको क्या बोलेंगे, उसको जुवेनाइल फेज बोलेंगे। नाउ इट इज द ग्रोथ फेज। ओके जुवेनाइल
फेज इज द ग्रोथ फेज, यहाँ पे ग्रोथ होगा। ओके, ग्रोथ इंक्लूडेड इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, हमारा इन्फेंसी, इन्फेंट स्टेज एंड चाइल्डहुड, बचपन को इंक्लूड करता है, रिप्रोडक्टिव फेज को इंक्लूड नहीं करता है जुवेनाइल फेज। यू हैव टू मेमोराइज दैट दिस इज द ग्रोथ फेज। ओके, नाउ यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा यहाँ पे। नाउ वेरिएबल इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ये जो जुवेनाइल फेज है ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होगा जुवेनाइल पीरियड्स, दैट इज अप टू 12 to 13 ईयर्स, क्योंकि 12 to 13 ईयर्स के बाद हमारा प्यूबर्टी आ जाता है, प्यूबर्टी आने के बाद हमारा रिप्रोडक्शन कैपेसिटी आ जाता है। तो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को हम जुवेनाइल फेज में इंक्लूड नहीं करते हैं। सो बिफोर प्यूबर्टी को हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल पीरियड ऑफ ह्यूमन बींग्स बोलेंगे। सो कितना है हमारे ह्यूमन बींग्स में जुवेनाइल पीरियड, दैट इज अप टू 12 to 13 ईयर्स। ओके, बट ये डिफर करेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ यहाँ पे मैं तुम लोगों को कुछ बताऊंगा और कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम बताऊंगा और उसका जुवेनाइल पीरियड्स बताऊंगा। पहले देखेंगे मैरीगोल्ड का एक फ्लावर है। ओके, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो। ओके, मैरीगोल्ड हैव जुवेनाइल पीरियड अबाउट 3 months, राइस हैव 2 to 3 months, wheat have 3 months of juvenile period, coconut have up to 7 years of juvenile period. Okay, mango have 3 to 6 years of juvenile period. Okay, देखो यहाँ पे एक चीज़ तुमको क्वेश्चन में आ सकता है बच्चों, एक ऐसा पूछ सकता है कि प्लांट्स में कब फ्लावरिंग होता है। ओके, जुवेनाइल पीरियड कब है, ओके, कब फ्लावर दे पाएगा, तो पूछेगा मैरीगोल्ड कब फ्लावर दे पाएगा। यू कैन से marigold has the 3 months of juvenile period, so after 3 months marigold can produce flower. Okay, क्योंकि फ्लावर का बाद यहाँ पे क्यों हो रहा है, फ्लावर आएगा तभी तो रिप्रोडक्शन कर पाएगा, है कि नहीं। फ्लावर हैव द सेक्स गैमेट, वी नो दैट। नाउ कम टू द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ प्लांट्स। ओके, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव फेज देखते हैं। ओके, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, दैट इज द फेज वेयर an organism can have the capacity to reproduce. Okay, इसका दो कुछ टाइप्स हैं, देख लेते हैं। टाइप्स है, एक है मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड अदर वन इज योर पॉलीकार्पिक प्लांट्स। यहाँ पे देखो मोनोकार्पिक का मतलब क्या देख लेते हैं। मोनो मतलब वन, कार्पिक मतलब हो गया फ्लावर। ओके, पॉली मतलब मोर देन वन। ओके, मोर देन वन, एंड फ्लावर कार्पिक का मतलब हो गया फ्लावर। सो मोनोकार्पिक प्लांट्स का मतलब क्या हो गया, ये अपने लाइफ टाइम में ओनली वन टाइम फ्लावर देगा। पॉलीकार्पिक्स में क्या है, अपना लाइफ टाइम में बहुत सारा फ्लावर दे सकता है। सो मोनोकार्पिक क्या हो गया, प्लांट्स दैट गिव्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, एंड पॉलीकार्पिक का मतलब क्या हो गया, द प्लांट्स विच कैन गिव्स मोर देन वन टाइम्स flower in their life. Okay, so now discuss the monocarpic plant. तो यहाँ पे लिखा है सिंपली देखो, फ्लावर्स ओनली वंस इज देयर लाइफ टाइम, अपनी लाइफ टाइम में ओनली एक ही बार ये फ्लावर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइस एंड व्हीट, राइस को देखे हो कभी, राइस पहला राइस उगेगा, फिर उसके बाद राइस बनेगा, राइस बनने के बाद फिर से वो कुछ दिनों के बाद फिर से वहाँ से राइस उगता है क्या, नहीं, अपने लाइफ टाइम में एक ही बार राइस उसका फ्लावर बनेगा, वहीं से राइस बनता है। तो ये हो गया हमारा मोनोकार्पिक प्लांट, इसको हम एनुअल प्लांट्स भी बोलते हैं। जितने भी एनुअल प्लांट्स हैं सब एग्जाम्पल है तो हमारा मोनोकार्पिक प्लांट का। एक हो गया राइस, एक हो गया व्हीट। ओके, और देखते हैं, ये हो गया, देखो लुक हाउ ब्यूटीफुल राइस इज लुकिंग। नाउ दिस इज व्हीट। ओके, नाउ कम टू द मोनोकार्पिक प्लांट्स का और एक एग्जांपल, दैट इज बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है देखो बाई। ओके, बाई मतलब टू, नियल, इनियल का मतलब हो गया ईयर्स। ओके, सो ये जो प्लांट है 2 साल का प्लांट है। ओके, तो पहला ईयर में क्या करेगा, ये ग्रो होगा इस प्लांट का, सेकेंड ईयर में क्या देगा, ये फ्लावर देगा, लेकिन 2 साल में एक बार फ्लावर दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बाइनियल प्लांट्स बोलेंगे। The plants which gives once in 2 year,
द गिव्स फ्लावर इन द प्लांट which gives flowers once in 2 years, that is known as biennial flower. For example, ये तुम्हारा हो गया कैरेट एंड रेडिस. सो एग्जाम्पल दे दिया गया तुमको कैरेट एंड रेडिस, ये हो गया रेडिस, ये हो गया कैरेट. तो ये दोनों जो है तुम्हारा बाइनियल प्लांट्स हैं. ये 2 साल में एक ही बार फ्लावर देते हैं. पहला ईयर ग्रो करते हैं, सेकेंड ईयर फ्लावर देते हैं, फिर मर जाते हैं. नेक्स्ट, अनदर एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्पिक प्लांट्स दैट इज स्ट्रोबिलैंथस कुंथियन. स्ट्रोबिलैंथस कुंथियन, इसको हम नीला कुरिंजी भी बोलते हैं, दैट इज नोन एज नीला कुरिंजी. ओके, देखो ये 12 ईयर्स में एक बार फ्लावर देता है. दिस गिव्स flowers in 12 years for one time. Okay, and found in generally hilly area, and कहाँ पे मिलता है? जनरली कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. ओके, ये फ्लावर कैसे दिखता है? यू कैन सी हियर, दिस इज आवर नीला कुरिंजी फाउंड इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ओके, देखो ये हिल स्टेशन में मिलता है. देखो पूरा हिल को पूरा तुम्हारा वायोलेट करके अपना फूल से रंग दिया है. दिस इज द नीला कुरिंजी. ओके, now come to the another term that is known as perennials. perennials का मतलब देखो यहाँ पे लिखा है simply live for many years. हमने पढ़े एक साल एनुअल पढ़े, 2 साल का बाइनियल पढ़े, लेकिन अब आ गया है पेरिनियल्स. पेरिनियल्स का मतलब है द प्लांट्स विच कैन लिव फॉर मैनी ईयर्स. बहुत साल तक ये जी सकता है, बट अपने लाइफ में ओनली एक बार ही फ्लावर देगा. फॉर एग्जाम्पल बेम्बू साटुल्डो, दैट इज नथिंग बट द बैम्बू. हमारा जो बैम्बू होता है, बैम्बू अपने लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर देता है, दैट इज इन द ईयर 56 ईयर में एक बार देता है. यहाँ पे लिखा है फ्लावर वंस 50 to 100 ईयर्स, और ये मर जाता है. एक ही बार फ्लावर देता है अपने लाइफ टाइम में और मर जाता है. फॉर एग्जाम्पल दैट इज बैम्बू साटुल्डो. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट. तुम लोग नीट में बहुत बार आ चुका है ये, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको याद रखना है तुम लोगों को. So this is the figure or the picture of bamboo plant. Okay, now come to the polycarpic plants. polycarpic plants में क्या होता है? जनरली perennial plants आते हैं. perennial plants का क्या होता है मतलब हो गया? perennial plants का मतलब हो गया the plant which can live for many years. Okay, and perennial plants flowers repeatedly at interval every years. क्या बोल रहा है? पॉलीकार्पिक प्लांट्स में जनरली पेरिनियल प्लांट्स आते हैं, पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? ये जो पेरिनियल प्लांट्स है एवरी ईयर, ओके, एक पर्टिकुलर इंटरवल में फ्लावर देंगे. ओके, उसका एग्जांपल देख लेते हैं. फ्लावर्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ ईयर्स, मतलब हर एक साल में. ओके, पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर करके हर एक साल में जो जो फ्लावर देते हैं उसका एग्जांपल है एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स. ये हर साल फ्लावर देते हैं. देखो ये सीजनल भी है लेकिन एनुअल है ये लोग, पेरिनियल. ओके, नाउ कम टू द फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर. फॉर एग्जांपल चाइना रोज. चाइना रोज को देखो जो रेड कलर में आता है वो पूरा साल भर फ्लावरिंग करता रहता है. ओके, सो बच्चों ये जितना भी मैंने तुम लोग को पढ़ाया मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एंड फॉर योर बोर्ड्स. यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं पक्का, ये गारंटीड है. तुम लोग 4 से 8 मार्क इसको अगर अच्छे से कर ले तो मिल जाएगा तुम लोग को. ओके, नाउ कम टू द अनदर टॉपिक दैट इज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म. सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? वो बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, मेल है, फीमेल है, क्या सेक्सुअलिटी है उस ऑर्गेनिज्म का वो देखेंगे. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म. वन योर डायोसियस, अनदर वन इज योर मोनोइशियस. डायोसियस का मतलब क्या है? डाई का मतलब 2, ओशियस का मतलब, इसियस का मतलब हो गया बॉडी. ओके, तो 2 डिफरेंट बॉडी. ओके, 2 डिफरेंट बॉडी को हम क्या बोलेंगे? डायोसियस बोलेंगे. मोनोइशियस को हम क्या बोलेंगे? ओनली 1 बॉडी. मोनो मीन्स 1, इसियस मीन्स बॉडी. सो मोनोइशियस मतलब 1 बॉडी. तो डायोसियस में 2 डिफरेंट बॉडी प्रोड्यूस 2 डिफरेंट गैमेट्स, मतलब वो होंगी यूनिसेक्सुअल. एंड मोनोइशियस में क्या होगा? एक ही बॉडी रहेगा लेकिन उसमें जो गैमेट प्रोड्यूस होगा 2 टाइप का प्रोड्यूस होगा. तो 2 टाइप का गैमेट प्रोड्यूस होगा तो बाइसेक्सुअल. ये हो गया. मोनोइशियस को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट्स भी बोला जाता है. डाइसियस को यूनिसेक्सुअल बोला जाता है. ये टर्म तुम लोग को आना चाहिए बच्चों. चलो इसको थोड़ा और डिटेली देखते हैं.
ओके, डायोसियस पहले देखें। डायोसियस में क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस आइदर मेल और फीमेल गैमेट्स, आइदर मेल और फीमेल गैमेट्स। तो डायोसियस ऑर्गेनिज्म जो होंगे आइदर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, दोनों एक साथ नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, वी कैन से देम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ there is a term we have to know that is heterothallic। heterothallic जनरली तुम्हारा फंगस में होता है, फॉर एग्जांपल म्यूकर, म्यूकर में हेट्रोथैलिक का टर्म यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा उसमें ना ही फिजियोलॉजिकल ना ही मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो भी गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, मेल या फीमेल जो भी गैमेट प्रोड्यूस करेगा, उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, सो इस टाइप का गैमेट प्रोडक्शन को हम बोलेंगे एट्रोथैलिक, और उसका एग्जांपल है म्यूकर। तुम लोग को इसको याद रखना पड़ेगा। ओके, सो जो डायोसियस ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल्स है देखो, कॉकरोच, बर्ड्स, मामल्स। ओके, नाउ कम टू द प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में देखते हैं। ओके, मेल फ्लावर को हम स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं। पहला बात, मेल फ्लावर दैट इज स्टेमिनेट फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दैट इज पिस्टिलेट फ्लावर आर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट्स। तो ये बोल रहा है जो मेल फ्लावर होते हैं उसको हम स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं। क्यों स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं, बिकॉज सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है उनमें स्टेमेन। ओके, मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज स्टेमेन। एंड फीमेल फ्लावर्स को हम बोल रहे हैं यहाँ पे पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर का मतलब क्या है, फीमेल फ्लावर है पिस्टिल्स। ओके, आर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं, एक प्लांट में दोनों मेल एंड सेक्स ऑर्गन्स वाला फ्लावर नहीं बनेगा। बनेगा कैसे बनेगा, बनेगा तो ओनली स्टेमेन फ्लावर बनेगा और पिस्टिलेट फ्लावर्स बनेगा। इन दोनों में से कोई एक बनेगा एक ही प्लांट्स में। सो इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, नाउ एग्जाम्पल हो गया यूनिसेक्सुअल जो डायोसियस प्लांट का, डेट पाम, पपाया, मर्चांसिया। मर्चांसिया क्या है, तुम ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मर्चेंसिया ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, आल्गी है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, क्या है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ओके, नाउ लुक, दिस इज आवर म्यूकर। ओके, म्यूकर का स्ट्रक्चर मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। दिस इज म्यूकर, फर्स्ट वन इज दिस इज कॉकरोच, ये हमारा बर्ड्स है, मामल्स, डेट पाम। Okay, this is papaya. These are the unisexual organism. Okay, now we have merchansia. Okay, ये हमारे पास है merchansia. Okay, merchansia क्या है तुम लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। This is, एक मिनट, this is merchansia. merchansia क्या है ये तुम लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। नाउ कम टू द मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब है वन बॉडी बट टू सेक्स। सो दीज आर नोन एज बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ओके, और ये वर्ड भी जानते हैं इसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, हर्माफ्रोडाइट्स। ओके, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा। मोनोइशियस ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये मेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस करेंगे। नाउ देयर इज अ वर्ड दैट इज होमोथैलिक। होमोथैलिक मीन प्रोड्यूसेस गैमेट विद मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। तो ये जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे अलग अलग दिखेंगे, फिजियोलॉजी में भी अलग दिखेगा एंड मॉर्फोलॉजी में भी अलग दिखेगा, बट सेम ऑर्गेनिज्म में बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे होमोथैलिक। इसका एग्जांपल है राइजोपोस स्टोलोनिफर। नेक्स्ट, इसका एग्जांपल है अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, टेपवर्म, लीच। ओके, प्लांट का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। जो पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट फ्लावर ऑन सेम प्लांट, दो इस एक ही प्लांट में इसका पिस्टिलेट फ्लावर बनेगा एंड स्टेमिनेट फ्लावर बनेगा। ओके, एग्जांपल हो गया मेज, कोकोरबीट, कोकोनट एंड कारा। लुक, ये क्या है हमारा, दिस इज राइजोपोस स्टोलोनिफर, दिस इज अर्थवर्म, दिस इज स्पॉन्जेस। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज टेपवर्म। देखो कैसा दिख रहा है टेपवर्म, ये हमारा टेपवर्म है। ओके, दिस इज
our tapeworm. Now look another. ये क्या है बच्चों? ये है हमारा लीच. Okay. Now this is maize, cucurbit, coconut, and this is कारा. ओके, ये है हमारा कारा. ओके, ये हो गया हमारा कारा. तो तुम लोग कारा क्या है, आल्गी है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है, प्लांट है, क्या है, तुम लोग मुझे बताओगे कारा क्या है इन कमेंट सेक्शन. ओके, चलो आगे चलते हैं. ये हमारा है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ डायग्राम. लुक एट हियर. दिस इज आवर आर्थवर्म. ये हमारा है कॉकरोच. ये आर्थवर्म का डायसेक्शन दिया है. ये तुम्हारा हर्माफ्रोडाइट्स है ये. ओके, नाउ वी हैव कॉकरोच. कॉकरोच का टेस्टिस भी है. देखो यहाँ पे टेस्टिस है, यहाँ पे ओवेरी है. तो ये हर्माफ्रोडाइट हो गया. नाउ यू कैन सी हियर इन मोर डिटेली. ओके, एक मिनट. नाउ लुक, यहाँ पे हमारा आर्थवर्म है. आर्थवर्म का टेस्टिस देखो एक जगह में है एंड ओवेरी भी है. तो टेस्टिस ओवेरी है मतलब सेक्स ऑर्गन दोनों का दोनों प्रेजेंट है. तो ये हो गया बाइसेक्सुअल. एक ही ऑर्गेनिज्म में टेस्टिस है, एक ही ऑर्गेनिज्म में ओवेरी. तो बाइसेक्सुअल और मोनोइसियस ऑर्गेनिज्म है. कॉकरोच में देखो टेस्टिस भी है और ओवेरी भी है. तो ये हो गया क्या हमारा, ये हमारा कारा है. ओके, नाउ एक मिनट बच्चों. ये है मोनोइसियस, ये है हमारा डायोसियस. देखो ये तुम्हारा एंथ्रोजोइड्स है और ये एंथ्रोगोनोफोर. तो ये तुम्हारा मेल है, ये तुम्हारा फीमेल है. तो मेल फीमेल अलग अलग हैं. ये तो हो गया डायोसियस. ओके, यहाँ पे देखो स्टामेन एंड कार्पेल एक ही जगह में है. तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया. ओके, सो आज के लिए इतना ही बच्चों. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो कम विद द प्रिपरेशन एंड if you have any doubts in this session then ask me in the comment section. And thank you so much for watching. Love you all. Bye bye. Thank you.